Assalamu alaikum students, how are you all? Fine. Good. And teacher, Did you see your homework on software? आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पे होमवर्क देखा, चेक किया? यस टीचर मैं आज बना के दे दूंगा। सॉफ्टवेयर पे होमवर्क अपलोड किया है, भेजा मैंने इस पिक्चर के साथ जो मैंने आपको वर्ड की फाइल शेयर की थी. I shared a picture on software. You can see वो from there. Yeah, the name of the compounds and the how to make the structure of the molecule. ठीक है? On a card sheet with the help of a card sheet टीचर मैं paper. आपको कल सबमिट करवा दूंगी. Yes, all of you will have to bring your structure of molecule in your classroom. क्लास में आप लोग अपने साथ लेकर आएंगे along with your name and section. ठीक है? ओके. So where ये पता है कौन सी ऐप्स पे होता है होमवर्क? कौन सी ऐप्स होता है? कहाँ से देखेंगी? ये ले खुद करिएगा, उससे नहीं पूछिएगा. क्या? है नहीं. हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम सलाम खैरत. How are you? आई एम फाइन. Good. हाउ आर यू? I'm not fine. I have a Why? fever. I have a fever. Oh. Okay, so let's start the class, students. In last sessions, we have discussed about the matter and their particles and how to draw molecular structure of the particles. With the, so, let's take a review of the previous class and then I will go to the next topic. हम जाएंगे next topic की तरफ कि हमारा next topic क्या है. ठीक है? First of all, we will start our last session topics. Okay. I am just showing you the picture of last session's topic. In last session, we have discussed about matter and materials. Okay, that what is matter? Everything around us, around you is made up of matter. We have discussed it. That everything around you, like your table, your chair, your food, your school bag, many things around your pencil, your scale, everything around your fan, your light, so many things around us. No? So everything is made up of matter. Okay. Now next is that next was what is the matter exactly? Anything that has a mass, यानी कि weight and occupies some space is called matter. कोई भी चीज इसका weight होगा and they occupy some space. What we called it? We called it matter. Okay. So and we took the examples of water and water. How can we take the examples of water? We have a two glass, empty glass and full of glass. They both have space. They both have occupied space and take some is void, take some void. Okay, इनका स्पेस है, कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इनका कुछ वेट भी है. This is the example of the matter. Air will also the example of the matter. Air is also the example of the matter. Air की example किस तरह से matter थी, आपको बताया था. एक हवा अगर blow कर रही है, ठीक है, तो obviously अगर वो एयर जो है ब्लो कर रही है, इसका मतलब वो कुछ कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उसको ब्लो करने पे जो है उसको मजबूर कर रही है. ठीक है, दिस एग्जांपल ऑफ द मैटर. इसके अलावा बलून की एग्जांपल ली थी. बलून इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द एम्प्टी बलून का वेट अलग होगा, ब्लोइंग बलून का वेट अलग होगा. ऑब्वियसली एम्प्टी बलून जो होगा वो कुछ कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जो ब्लोइंग बलून होगा वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. दे बोथ हैव डिफरेंट वेट एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेसेस. ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी. अच्छा, तो उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स वी कॉल्ड इट अ मॉलिक्यूल आल्सो. ठीक है, एंड we also did the practice of how to make a water molecule. हमने तो हाइड्रोजन एटम लिए थे और ऑक्सीजन एटम लिया था. And to attach these particles we have to take opposite signs. Positive and negative sign attract with each other, so we can create a molecule. ठीक है, हमने कुछ examples भी ली थी. And you can create any other compound
with the help of different example like carbon dioxide, oxygen. We took so many examples yesterday. ठीक है. Now come to our new topic, which is state of matter. State of matter. Our new topic is about states of matter. ठीक है. आज का टॉपिक क्या है हमारा? स्टेट्स ऑफ मैटर. As we all know very well that matter exists into three states: solid, liquid and gas. ठीक है. ये हम सबको पता है कि मैटर की थ्री स्टेट्स हैं. सॉलिड यानी कि इन आइस फॉर्म. आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल्स. लिक्विड इन वाटर फॉर्म. और लिक्विड किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं कि वाटर की फॉर्म में, जूस के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑयल के फॉर्म में भी हो सकता है, पेट्रोल के फॉर्म में भी हो सकता है, इन एनी फॉर्म. ठीक है. गैस इन वेपर्स फॉर्म यानी कि गैस वेपर्स एवोपरेशन के फॉर्म में होता है. वाटर वेपर्स जो फॉर्म होता है आपके पास वो गैस के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट अदर स्लाइड. Solid state. In solid state, look at the particles of the solid. If you look at the particles of the solid, what will you observe? अगर आप solid के particles की तरफ देखेंगे तो what will you observe? क्या आप observe करेंगे? What will you observe? What will you observe? Join हुए हुए हैं particles. They are tightly joined with each other. आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल tightly joined है. एंड दे कांट मूव. इवन ये एक दूसरे से ये मूव भी नहीं कर पाएंगे. इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं कि ये मूव ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अदर एग्जांपल्स देखते हैं इनकी किस तरह की एग्जांपल्स हैं. ठीक है. सो लुक एट द एग्जांपल. यू विल ऑब्जर्व द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. आपने क्या ऑब्जर्व किया? द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं. ठीक है. means there is no space between the solid particles. एक पॉइंट आप यस एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या हो गई कि द सॉलिड पार्टिकल देयर इन सॉलिड पार्टिकल्स देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम. मींस दे कांट मूव. ये मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? उनको जुड़े हुए होते हैं. दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. ठीक है. ओके. नाउ कम टू द next slide. What are you observing? There are so many emojis. आप लोगों को दिख रहे हैं सबको? There are so many emojis. All the emojis are very close to each other and there is no gap between them. आप देखेंगे इन emojis के दरमियान कोई गैप नहीं है. इनके हेड्स आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं. So this all the examples of the solid means they have a strong force of attraction between them. इसका मतलब ये है कि इन जो सॉलिड्स के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. यानी कि उनके दरमियान इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते. दे कांट बी सेपरेट विद ईच अदर. ठीक है. ये जस्ट मैंने आप लोग एग्जांपल दी है इमोजीज की कि आपने देखा कि इनके हेड एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, ज्वाइन है. इट मीन्स दे हैव नो स्पेस. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकते. ठीक है. ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे. ठीक है. ओके. so this is the examples of the solid particle. Now solids can't move from place to another place. Solid एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकता because there is no space between them. ठीक है. They have a definite shape. ठीक है. Definite volume and they have a definite shape and a definite volume and they can't change their shape easily. ठीक है. आप एक बात देखिएगा यहाँ पर. देखिए आप इस टेबल को यहाँ पर देखिए. चेयर देखिए. क्या ये चेयर अपनी शेप चेंज कर सकती है इजीली? इसका एक प्रॉपर शेप है और इसकी एक प्रॉपर वॉल्यूम भी है. ठीक है. एंड दे कांट बी चेंज देयर शेप एंड फॉर्म इजीली. यानी ये इतनी आसानी से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते कि हम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करें. अगर मैं इस चेयर को तोड़ने के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये टूट जाएगी, लेकिन इजीली नहीं टूटेगी. आई हैव टू अप्लाई सम मोर फोर्सेस. मुझे इसके ऊपर बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके ये चेयर टूटेगी. बट इजीली इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन चेंज द शेप ऑफ द सॉलिड. ठीक है. एंड लुक एट द बॉल. आप इस बॉल को देखिएगा. यहाँ पे बॉल देखिएगा. यू कांट चेंज द शेप ऑफ द बॉल.
अगर आपको इसकी शेप चेंज करनी है तो यू हैव टू अप्लाई सो मैनी फोर्सेस, ठीक है। ठीक है, एक आपके पास ये बॉल है, लुक एट द बॉल ओवर हियर, आगे देख सकते हैं इस बॉल में, इसको ये ऑल्सो दिस बॉल कैन चेंज देयर शेप, यू अप्लाई मोर फोर्सेस, ठीक है। if you unless a large force is applied on a solid to change the shape, अगर आप इसके ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक वुड है, अगर मुझे इस वुड को तोड़ना है टू अप्लाई मोर फोर्स, मैंने इसको ऑब्वियसली बहुत सारी फोर्स अप्लाई की होगी तभी जाके ये क्या हुआ, टूट गया। एंड एग्जाम्पल इज दैट, दूसरी एग्जाम्पल आपके पास क्या है, देखिए, यानी कि ये जो आपके पास एक गोरिल्ला है, आपने देखा होगा ये पूरा इसके ऊपर जो है वो जहाँ पर जो आपकी वुड है उसके ऊपर वो चढ़ गया है, तो आपने क्या देखा, जब वो यानी कि उस गोरिल्ले का वेट है ना, जब उसने उसके ऊपर वेट अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियसली आपके पास जो पूरी वुड थी उसके वेट से क्या हो गई, वो टूट गई, तो तब जाके उस सॉलिड की शेप जो है वो चेंज हुई, अदरवाइज आप अपने हाथ से इसको नहीं तोड़ सकते थे, ठीक है। उस गोरिल्ले का इतना वेट था कि उसने उस वुड को इजीली क्या कर दिया, तोड़ दिया। सो व्हाट इज द पॉइंट, point is that you can't change the shape of the solid easily, you have to apply some forces to change the shape of the solid, ठीक है। clear of you बेटा, ये कौन कर रहा है, stop animation। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को क्लास जी। just let me know if you want to ask any question regarding solid, just let me know। yes class, your mic is unmuted जी। Students, you are not supposed to be allowed to ask in chat box। चैट बॉक्स में कोई दूसरे से आपस में गॉसिप नहीं करेगा, कोई आपस में दूसरे चैट बॉक्स में गॉसिप नहीं करेगा, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन माय क्लास। अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना है रिगार्डिंग योर लेक्चर तो यू कैन आस्क मी, बट डोंट टॉक विथ ईच अदर रिगार्डिंग योर रेगुलर एक्टिविटीज, व्हाट आर यू डूइंग एंड सो ऑन, ठीक है। कोई दूसरे से बात नहीं करेगा, समझ आ रही है आप लोगों को, ओके। Now come to the next topic। Okay, our next step, okay, our next state is liquid state, ठीक है। Look at the particles of a liquid, they are loosely packed with each other and they can also move easily। लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है, आपने सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या ऑब्जर्व किया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स दे आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड दे कांट मूव इजीली, ठीक है। बट इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड होते हैं, ये इतने क्लोज नहीं होते एक दूसरे से, एंड दे कैन मूव इजीली, ठीक है जी। हाँ एम्मा, टीचर जैसे सॉलिड में सब एक साथ जुड़े हुए थे और लिक्विड में सब एक दूसरे से खुले हुए हैं, जैसे इजीली मूव कर सकते हैं। yes they have some spaces between them, इनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से दे कैन मूव इजीली, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड, here are some examples like juice, water, milk and oil, ठीक है। these are the examples of the liquids have a definite volume but do not have a definite shape। हमने सॉलिड के बारे में क्या बात, सॉलिड है पर सॉलिड की एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और सॉलिड की एक डेफिनेट शेप भी होती है, सॉलिड का एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है, एक प्रॉपर शेप होती है। बट इन लिक्विड स्टेट लिक्विड हैव अ डेफिनेट, लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लेकिन इसकी जो प्रॉपर शेप नहीं होती। दे कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये अपना साइज चेंज कर लेता है जिसमें इसको पोर किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स अभी आप लोगों को आगे दूंगी तो आप समझ जाएंगे कि लिक्विड अपनी जो शेप है वो कैसे चेंज करता है, ठीक है। एंड दे हैव, अच्छा इन सॉलिड स्टेट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इन लिक्विड स्टेट वी हैव अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, थोड़ी सी वीक होती है जिसकी वजह से वो आपस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है they can't move easily, वो मूव नहीं कर पाते। बट इन लिक्विड स्टेट दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वाटर टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर वी पोर इन इट। वाटर कौन सी शेप ले लेता है, आप इसको जिस जिसमें भी आप पोर करोगे, फॉर एग्जांपल लुक एट द पिक्चर ओवर हियर,
लुक एट द पिक्चर ओवर हियर। आपने क्या देखिए, अगर इस कैटल से मैं जैसे टी पोर करूँ कप के अंदर, तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा। ये जिसमें भी जाएगा ये क्या करेगा, ये कैटल क्या करेगा, जब ये कैटल में से टी जाएगी कप के अंदर, तो ऑब्वियसली द टी विल टेक द शेप ऑफ द कप, उस कप की शेप ले लेगी। ठीक है, अगर मैं इसको अगर मैं इसको वापस कैटल में डालूंगी तो वो कैटल की शेप जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स द वाटर टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर वी पोर इट। हम जिस भी कंटेनर में, जिस भी बॉल में या जिस भी पॉट में इसको इंसर्ट करेंगे, ये उसी की शेप क्या करेगा, कैरी कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द अदर एग्जाम्पल। इफ यू पोर सम वाटर इनटू अ ग्लास, इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। अगर आप एक जग में से ग्लास को, अगर आप एक जग ले, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर, अगर आप इस जग में से, अगर आप इस जग में से इस ग्लास में पानी डालेंगे, ठीक है, मेरे पास कुछ लिक्विड है इस ग्लास के अंदर, इस जग के अंदर, और मैं इसके अंदर जब इस लिक्विड को पोर करूंगी, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली इट विल शेप टेक द शेप ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो दिस इज व्हाई इट विल चेंज द शेप ऑफ द लिक्विड। ठीक है, आप इस तरह से लिक्विड की शेप चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी लिक्विड या जिस भी कंटेनर में लिक्विड को पोर करेंगे, इट विल चेंज देयर शेप, वो उसी की शेप कंटेन कर लेगा। ठीक है, अगर ये कप में जाएगा तो ये कप की शेप ले लेगा, मतलब वैसे ही उसको उतना ही साइज ले लेगा जो कप का साइज होगा। अगर आप किसी लिक्विड को ग्लास में पोर करेंगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास, वो ग्लास की शेप ले लेगा, वो उसी की शेप का प्रॉपर जो है वो एक शेप प्रॉपर जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सॉलिड एंड लिक्विड। आप लोगों के कैमरास क्यों बंद है? Everyone, please unmute your mics and let me know what are you trying to ask. Unmute your mic. यस मिस। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग, पूछिए। मिस मुझे तो कुछ नहीं करना। सब समझ में आ गया? यस मिस। अच्छा अच्छा, अब मैं मिस आई आपको, हैव टेकन स्क्रीनशॉट। सॉरी, मिस आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट। अच्छा मैं आप लोगों से अब कुछ प्रॉपर्टीज पूछूंगी सॉलिड और लिक्विड की, कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए और लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है, जो हमने डिस्कस करी। ओके। तो वन बाय वन आई विल आस्क, और मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट करती जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम अहमद। अहमद अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अहमद का कैमरा आई थिंक स्ट्रक है। अच्छा, आप आ जाइए समीर। अच्छा, मैं आप लोगों को अलाउ कर रही हूँ, आप लोग खुद को अनम्यूट कीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। Wafa, stop messaging in chat box. And Sameer, unmute your mic. Now you are able to hear me, Sameer? Yes. Okay, now just let me know, Sameer. Yes. Is solid can change their shape easily? No. No. Okay. Now just let me know if I will apply more forces on the solid subject. For example, मैं wood के ऊपर बहुत सारी force apply कर रही हूँ, तो is they able to change their shape? Yes, Sameer. Sameer, I am asking to you, beta. If I will apply some forces on the solid object, अगर मैं किसी solid object पे बहुत सारी force आवाज नहीं आ रही सही। now I'm audible? Yes. Okay. Now just let me know, अगर मैं किसी solid पे बहुत सारी force apply करूँगी, so it will change their shape easily? No. No? अच्छा, समीरा, अच्छा शामिर आप बताइए। Yes, Shamir. Unmute yourself.
Yes, teacher. Now just let me know, Shamir, if I will apply some forces on any solid object, okay? So it will change their shape or not? Liquid on solid. If I will apply forces, a large force, बहुत सारी force अगर मैं किसी solid Yes, object पे teacher. apply करूँगी, so it will change their shape or not? Yes, teacher. It will. Okay, it will. Means the solid object cannot change their shape easily, but if you will apply a large force on it, so they can change their shape easily. ठीक है? Huzaifa, give me some examples of solid. Unmute yourself. Unmute yourself, Huzaifa. Yes, miss. Give me some examples of solid. Sofa, cup, Sorry. fan, Yes. fan. We have so many examples around us which are solid. ठीक है? अच्छा. Now just let me know. Aima, आप बताइए, is the solid have a proper shape and a proper volume? Yes and no? Yes, teacher. Solid has proper volume too and proper shape too. Okay, very good. अच्छा, Wafa, just let me know the particles of liquid, how the particles of liquid are arranged. और liquid के particles किस तरह से arrange होते हैं? Your voice is not clear. Beta, everybody is able to listening me, na? So why you are not able to listening? Okay, Fahad, They आप can change their shape according to their. Yes, miss. Fahad, just let me know how are the particles of the liquid arranged? Liquid के particles किस तरह से arranged होते हैं? मिस वो किसी भी वो शेप में, अगर वो लिक्विड हो जो किसी भी शेप में बेटा, हो, मैं आपसे उसकी पूछ shape रही हूँ लिक्विड के पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज टाइटली और लूजली? मिस टाइटली? आर यू श्योर? मिस Then- यस, क्योंकि उसमें No. इसके You are उसमें wrong, ज्यादा Fahad. You are wrong, Fahad. लूजली. जैनब बताइए. Yes, Zainab. What, teacher? The particles of how the particles of liquid are arranged? Teacher, वो लूजली होते हैं. Loosely packed होते हैं and they can move easily or not? Rayan, just let me know. यस, They can move easily or not? इजीली. Easily. Why? जी वफा. Why the particles Because- of the liquid can move easily? बताइए वफा. बिकॉज़ दे आर एक सेकंड. so loosely. Why the particles? जी. अहमद अफजल. Yes, miss. Why the particles of the liquid are loosely arranged? Why? Miss. Because they can move easily. That's why their particles are loosely arranged. Because इसलिए क्योंकि वो ताकि वो easily क्या कर सके, move कर सके. That's why they are arranged loosely. ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ. Look at the particles of the solid. एक बार सारी स्लाइड पे फिर से शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए. Tomorrow we will discuss about the gas state. ठीक है? Yes. We have three states of matter: solid, liquid, and gas. Okay. Solid state. In solid state, the particles are tightly packed with each other. Okay, means there is no space between them. Next is that
Solid can't move Relax. easily. Here are the some characteristics of the solid. Solid can't move easily because there is no space between them. इसके अलावा solid की एक definite shape होती है और definite volume होता है और ये अपना shape easily change नहीं करती है, ठीक है. But अगर Okay, मैं miss. अगर मैं इनके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करूं, unless large force is applied on a solid, so it can change their shape, ठीक है. Next one is that liquid state. In liquid state, the particles are loosely packed with each other और ये easily move कर सकते हैं, ठीक है. Here are the some examples of the liquid. अच्छा, अब लिक्विड अपनी लिक्विड है वो डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का प्रॉपर वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है. एंड दे कैन चेंज देयर शेप इजीली, ये अपना शेप इजीली, लेकिन ये शेप अपना कैसे चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंटेनर. आप इसको जिस भी कंटेनर में पोर करोगे ये अपना साइज उसी के अकॉर्डिंग कर लेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है. जस्ट लाइक दैट water takes up the shape of the container we pour in it. Just like if I will put some tea onto the cup, so what will you observe? The tea will take the shape of the cup. कैटल में जो टी का जो शेप था वो कुछ और था लेकिन जब वो कप के अंदर है तो उसका शेप कप की फॉर्म में हो गया, ठीक है. तो वाटर टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर वी पोर इट. नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या थी, आपने जब एक जग में से किसी ग्लास में किसी भी लिक्विड को पोर करोगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास. कोई भी लिक्विड जब आपको किसी भी कंटेनर में पुट करोगे, चाहे आप किसी बॉल में डालो, किसी बड़े जग में डालो, किसी बड़े जार में डालो, किसी बड़े कंटेनर में डालो, तो ऑब्वियसली इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच यू पोर इन इट. आप उसको जिस भी कंटेनर में पुट करोगे ये अपना शेप उसी से क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है. क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर क्लास? टीचर आपने गैस की स्टेट नहीं बताई हमें. जी, गैस की और गैस स्टेट यू विल डिस्कस टुमारो. हम थोड़ा गैस के बारे में कल पढ़ेंगे, गैस स्टेट के बारे में कल डिस्कस करेंगे. एंड आप लोगों को जो होमवर्क मैंने असाइन किया है अबाउट मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, आपने सबने होमवर्क चेक किया सॉफ्टवेयर पे जाके? मिस नो, एक मिनट मैं चेक करता हूँ. यूनिवर्सिटी पर होमवर्क जो है वो अपलोड कर दिया गया है. गो टू द सॉफ्टवेयर एंड चेक योर होमवर्क एंड यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क टिल टुमारो. ऑल ऑफ यू विल ब्रिंग योर होमवर्क अलोंग विथ यू. अपने साथ आप लोगों ने बस एक मिनट देखता हूँ. Miss, my charging is so कम, that why मेरा फोन बंद होने वाला है तो मैं लीव कर दूँ. yes you can leave now. अच्छा, क्लास ओवर होने ही वाली है लेमा, so you can leave now. all of you will bring your homework with you along क्लास में. सब अपना अपना स्ट्रक्चर बना के अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है. मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में लॉगिन नहीं है. अच्छा, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, लेट मी नो कि आपको होमवर्क मिल गया या नहीं मिला है, ठीक है. ओके एवरीवन, सो मेरा तो हो रहा है. ओके, क्लास इज अप. क्लास टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.